Hello, everyone, and welcome back to my channel. We are continuing the lecture series on Indian Contract Act, and today this is the second lecture, and we are going to cover very important thing that are the basics of Indian Contract Act and the basic terms which are used in the contract. So, generally, people get confused on what is contract, what is a proposal, how is it different from a promise, what is agreement, what is consideration. Everything we are going to cover in this particular lecture. So, to start with, if you have not yet subscribed to my channel, I request you all to please do subscribe. That will encourage me to make more such videos and learnings because it takes a lot of effort to make one video. Nevertheless, let's get started. So, in the first video, we have learned about the basics of Indian Contract Act. That is, it is Act number 9. When it came into force, how many chapters it has? It has 266 sections. What is the preamble? This was the basic overview. The link of the lecture 1 is above. You can just go through the link. It's there. This is the basic overview which I gave of Indian Contract Act. So पहले वीडियो में मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बेसिक ओवरव्यू और स्ट्रक्चर दिया था कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और ईच चैप्टर में क्या क्या सेक्शंस हमको कवर करने हैं. उसका लिंक ऊपर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप प्लीज़ देख सकते हैं. So, in this video, we will start with the preliminary का second section, that is the interpretation clause. जैसे मैंने first video में भी I have explained that this clause is very important. It is the definition clause. It is interpretation of the various words which are being used. What are the meaning of the words used in this particular? So this is generally the section 2 of any act. So we'll start with the first, that is 2A. That is proposal. आप याद कर सकते हैं 2A. पहला है proposal. आप प्रपोजल को समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर फ्रेंड एंड यू से दैट विल यू बाय माई लैपटॉप एट से 50,000 रुपीज़. आप क्या कर रहे हैं? आप उसको एक प्रपोजल दे रहे हैं अपने फ्रेंड को. दैट इज़ कॉल्ड अ प्रपोजल. एक्ट और बेयर एक्ट की लैंग्वेज में इसको समझें और पढ़ें तो इफ़ यू अंडरस्टैंड इन द लैंग्वेज ऑफ बेयर एक्ट, इट गोज लाइक दैट. If one person, say for example I, signifies to another or tells to another, or not necessarily tell, you can say, you can give in writing also, you can tell the intention also, signify to another his willingness to do, means I have a willingness to give my laptop at 50,000 rupees to someone. So if one person has willingness to do something or abstain from doing anything, means if I say that if my proposal is that you please do not go to the mall today, right? So I tell my friend that please do not go to mall today. So I am abstraining someone for doing something, means I am telling not to do something with a view to obtain the assent of that other to such an act or absistence that he is said to be make a proposal. इसका मतलब ये है कि with a view to obtain the assent of that other. Now other is your friend. आप ये हैं, आपने अपने फ्रेंड से एक प्रपोजल किया, ये बोला, एक विलिंगनेस दिखाई कि आई वॉन्ट टू सेल माई लैपटॉप, विल यू बाय माई लैपटॉप एट 50,000 रुपीज. So that is your willingness which you have signified to the other person that you want to do this thing. Now what is the intention behind that? Your intention is that you get the assent of the other person, that कि वो जो है आपका जो फ्रेंड है वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे. सो विद दैट इंटेंशन यू आर गिविंग द प्रपोजल, अदरवाइज इज नो यूज, है ना. प्रपोजल का मतलब ये है कि आपका कोई इंटेंशन है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं एंड यू टेल दैट इंटेंशन टू द अदर पर्सन टू डू दैट थिंग और नॉट डू दैट थिंग. सो जब ए ने प्रपोजल बी को दिया, सो दैट मीन्स ही इज गिविंग हिज इंटेंशन, हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain from doing something with the view, with the objective, with the view of obtaining the assent. यानी उसका आपको assent चाहिए, आपको उसकी acceptance चाहिए of that act or the absistence, और कि आप चाहते हैं कि तुम मॉल मत जाओ, तो he says कि okay, the absistence says the person will not go to the mall. So that is the acceptance. Your intention is कि आपको B से assent मिल जाए. That is called a proposal. Simple. ए ने बी को एक प्रपोजल दिया कि क्या तुम मेरा लैपटॉप खरीदोगे 50,000 रुपीज़ में. दैट इज कॉल्ड अ प्रपोजल. प्रपोजल के पीछे इंटेंशन क्या होता है कि बी जो है उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, यानी मान जाए, राइट. सो दिस इज सेक्शन 2A, प्रपोजल. आई होप इट इज क्लियर.
Then we come to the section 2B, that is promise. Now अगर B ने reply किया कि yes I agree to your proposal, that means proposal के साथ अगर acceptance जुड़ जाती है तो वो बन जाता है promise. It's very simple. When a person to whom the proposal is made, अब हमारे एग्जाम्पल में A ने प्रपोजल दिया B को कि क्या तुम मेरा लैपटॉप खरीदोगे 50,000 रुपीज में. सो दिस B बिकम्स द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, कि वो अपना एसेंट को सिग्निफाई कर देता है, बता देता है, इन्फॉर्म कर देता है. सिर्फ मन में रखता है कि हाँ यार क्या मैं इसका लैपटॉप खरीद लूँ, हाँ अच्छा ऑप्शन है, बट वो अपने मन में रखता है एंड डजंट गिव द एक्सेप्टेंस ओरली, वर्बली, रिटन वे, एनी फॉर्म, डज नॉट इन्फॉर्म द ए कि मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्टेड है, देन इट विल नॉट बी अ प्रॉमिस. So it is only when it is a promise when the B signifies his assent thereto to the proposal, कि जो भी proposal है उसको अगर वो B ने signify करके बता दिया कि मुझे आपका proposal accepted है, मुझे आपका proposal मंजूर है, then the proposal which is accepted becomes a promise. Simple equation में मैंने समझाने की कोशिश की, एक proposal था, अगर उसको accept कर लिया गया तो it becomes a promise, right? तो 2B सेक्शन हमने कवर कर लिया. इंटरप्रिटेशन क्लॉज का तीसरा सेक्शन है C2C विच इज अ प्रोमिसर. ऑब्वियसली प्रोमिसर कौन हो गया? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल. तो हमारे केस में A इज द पर्सन हु इज मेकिंग द प्रपोजल. मैं वो पर्सन हूँ जो प्रपोजल दे रही हूँ कि क्या विल यू बाय माई लैपटॉप एट 50,000 रुपीज. सो दिस A बिकम्स द प्रोमिसर, जो कि प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है, एंड प्रोमिसी इज वन हु इज एक्सेप्टिंग. सो द प्रॉमिस जो कर देता है कि हाँ ठीक है आई एम एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल, दैट पर्सन बिकम्स द प्रोमिसी. सो देर आर टू पर्सन, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. नाउ सेक्शन 2D. अब कोई भी चीज़ ना बिना पैसों की कुछ नहीं होती या बिना कंसिडरेशन की कुछ नहीं होता. कंसिडरेशन का सिंपल वर्ड है कि भैया वापसी मुझे क्या दोगे. लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होती दोस्तों. तो उसने ये कहा कि भैया मुझे आपका लैपटॉप चाहिए. तो B ने बोला कि मैं खरीद तो लूँगा, कितने पैसे लोगे? और A ने क्या कहा कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट तो कर रहे हो पर मुझे 50,000 रुपीज़ उसके देने हैं. सो दैट 50,000 रुपीज़ बिकम्स अ कंसिडरेशन. तो किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करके प्रॉमिस बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है दैट बिकम्स अ कंसिडरेशन. For example, I say that A and B go into a proposal. A gives a proposal of selling a bike and B says, okay, I agree to get your bike. But what will A get when he gives the bike? A ने जो दी B को, that is a bike, that is a consideration which B is getting. B ने बाइक के पैसे A को वापस किए तो वो एक कंसिडरेशन B है जो है वो A को मिलेगा फ्रॉम B. सो लेट्स रीड द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इट सेज. 2D कंसिडरेशन कहता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसर जो चाहता था, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, कि जब A ने को डिजायर करी कि हाँ ठीक है विल यू बाय माई लैपटॉप एट 50,000 रुपीज, तो प्रोमिसी ने या कोई भी अदर पर्सन जो भी है जिसने प्रॉमिस किया है हैज डन दैट और एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, कि हाँ ठीक है मैं आज मॉल नहीं जाता, ही इज एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, और डज और एब्स्ट्रेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू, और कि मैं ठीक है मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा लैपटॉप 50,000 रुपये में ले लूँगा. सो प्रोमिसेस टू डू और एब्स्ट्रेन्स और प्रोमिसेस टू एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि आज की तारीख में, आज की डेट में, प्रेजेंट टेंस में अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है प्रॉमिस को, या फ्यूचर में भी कह रहा है कि ओके आई प्रॉमिस दैट आई विल डू दिस थिंग, सो सच एक्ट एंड एक्सिस्टेंस और द एक्सेप्टेंस और द प्रॉमिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन. कि ठीक है उसके बदले में जो उसको प्रॉमिस जो मिल रहा है कि मैं करूँगा, सो दैट बिकम्स द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, कि आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे. सो दैट डिज़ायर, व्हेन दैट इज डिज़ायर of the promiser, the promisee or the other person does or abstain from doing or abstains from doing, sorry, और abstains कि मैं फ्यूचर में ये काम नहीं करूँगा, then that becomes a consideration. ठीक है. सो कंसिडरेशन का बेसिक मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कि मैं तुम्हें क्या, प्रोमिसर ने अपना कुछ वादा किया प्रोमिसी को देने के लिए, सो दैट इज अ कंसिडरेशन. प्रोमिसी ने वादा किया उसको एक्सेप्ट किया, सो व्हाट इज प्रोमिसी गिविंग टू प्रोमिसर इज ऑल्सो कंसिडरेशन. सो दैट इज ऑल कंसिडरेशन. तो नेक्स्ट कम्स द सेक्शन 2E दैट इज एग्रीमेंट. अब एक प्रॉमिस हुआ, एक प्रपोजल था पहले,
प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस आ गई तो दैट बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी जुड़ गई तो वो हो गया एग्रीमेंट। भैया ए ने कहा कि क्या तुम मेरा लैपटॉप लोगे, दैट इज़ अ प्रपोजल। बी ने कहा हाँ मैं लूँगा, एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ अ प्रॉमिस। ना ए एंड बी ने अमाउंट भी तय कर लिया कि ठीक है हम दोनों क्या अमाउंट देंगे, दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ए अपना लैपटॉप 50,000 रुपीज़ में बी को देगा। बी ने कहा कि ठीक है मैं आपका लैपटॉप 50,000 रुपीज़ में आपको दे के लैपटॉप ले लूँगा, दैट इज़ एन एग्रीमेंट। सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, एक प्रॉमिस या बहुत सारी प्रोमिस जो दो पर्सन के बीच में हो रही है या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो रही है, forming the consideration for each other, that it agrees that there is a consideration between each other, that becomes an agreement. Simple. So a promiser and promisee, when agree for some consideration, then it becomes an agreement. Clear है? देखो अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू touch upon the doubts. Do write in the comment box whatever your doubts are. So अभी तक क्लियर है? A B, I am repeating, A B is a promiser, ये promisee। A ने बोला will you buy my laptop, B ने accept किया, proposal acceptance becomes promise, promise plus consideration becomes agreement. Simple. जो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सारे प्रोमिसेस एग्रीमेंट होते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, फिर कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है, दिक्कत कहाँ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ। सो सेक्शन 2F जो कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को डिफाइन करता है, वो ये कहता है कि प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल मतलब कि ए ने बी से भी कुछ प्रॉमिस किया, बी ने ए से भी प्रॉमिस किया, ठीक है मैं तुम्हारा लैपटॉप ले लेता हूँ और 50,000 रुपीज़ में, बी ने प्रॉमिस कर दिया एंड ए ने प्रॉमिस किया ठीक है मैं तुमसे ना तुम्हारा टैबलेट खरीद लूँगा ऑन 10,000 रुपीज़। सो दैट दिस आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ए टू बी एंड बी टू ए। दोनों ने आपस में कुछ कुछ प्रोमिसेस किए, दोनों ने प्रपोजल दिए, दोनों ने एक्सेप्ट किया, तो दैट बिकम्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देन व्हाट इज अ वॉइड? वॉइड वर्ड को प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लो सारे ही स्टूडेंट्स। वॉइड का मतलब है समथिंग विच इज़ नल, ज़ीरो। वॉइड मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जो कि लॉ लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हम उसको। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ के बीच में एक एग्रीमेंट है कि वाइफ ने बोला कि ठीक है आप मुझे शाम को घुमाने ले जाना, एंड हस्बैंड सेज ओके आई विल टेक यू। सो देयर वाज अ प्रपोजल, सो इट वाज एक्सेप्टेड, सो दैट बिकम्स अ प्रॉमिस। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस हो गया। उन्होंने बोला कि अच्छा अब घूमने जाना है, तो वाइफ ने बोला ठीक है इन रिटर्न में ना आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। So husband agreed to that. So there is a consideration. So promise, proposal plus consideration becomes an agreement. दोनों के बीच में agreement हो गया। अब शाम हुई, the husband came from office and wife also came from office. Both of them had decided in the morning that they'll go for some movie or something. But the husband denied. He said कि मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जा रहा। सो क्या होगा? सो देर वॉज एन एग्रीमेंट कि हम जाएंगे, तो क्या करेगी वाइफ? उठा के कोर्ट में ले जाएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। दैट एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स अ वॉइड एग्रीमेंट। सो इट इज़ वॉइड, नल। इसको आप कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते। बट ऐसा ही कोई एग्रीमेंट है विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। husband wife, if they form a contract, if they form an agreement and they write it on affidavit कि आज मैं affidavit stamp paper में लिख के जा रहा हूँ कि today I'll take you to say maybe to a good restaurant for or outing. So and he writes on a enforceable paper by the law on the affidavit. He submits the affidavit, both of them sign together, and then he backs out and says कि I don't agree to this agreement. Then that becomes a legally enforceable document. So that is a contract. So agreement plus enforceable by law becomes a contract. To sum up everything, एक proposal था, उसको accept किया, that becomes a promise. Promise के साथ consideration हुई, तो that becomes an agreement. Agreement में अगर enforceable by law है, that becomes a contract. So contract is defined in section 2H.
मैं H तक पहुंच गई हूँ, प्लीज़ नोट करेगा. Preliminary section 2H, which is contract, which is says कि any agreement which is legally enforceable by law becomes a contract. So if there is a question on defining a contract, आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो की पूरी समरी, आप जो भी ये वीडियो है उसको स्टॉप करके इन कंटेंट्स को आप पिक्चर फॉर्म में सेव कर सकते हैं, और इन्हीं को एज इट इज़ अगर आप इन कंटेंट्स को लिखेंगे विद द एग्जाम्पल, आई एम श्योर यू विल गेट 100% मार्क्स. सो विद दिस आई होप द बेसिक टर्म्स आर क्लियर. अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ है, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. I will definitely try to help you out. And a request to everyone to please do subscribe to the channel and like and share the video so that I also get motivated to make more such videos. So in the next lecture in this playlist, we will cover even more topics, the section 3 of Indian Contract Act. So 2 sections as of now we have covered. The preliminary section, section 1 and 2. So stay tuned, take care, stay blessed. See you in the third lecture. Goodbye.